नमस्ते। अब हम यूनिट 9 द ग्रेट स्टोन फेस के सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रो टू बी अ यंग मैन। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind, and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. साल बीतते गए और अर्नेस्ट जवान हो गया। घाटी के रहने वालों का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। उन्हें उसके जीने के तरीके में कुछ खास नहीं दिखा, सिवाय इसके कि दिन का काम खत्म होने के बाद भी उसे ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद था। उनका मानना था कि यह बेवकूफ़ी है, लेकिन माफ़ करने लायक है, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती, दयालु और पड़ोसी था। उन्हें नहीं पता था कि ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक टीचर बन गया था, और उसमें जो भावनाएं जाहिर होती थी वे उस जवान आदमी के दिल को बड़ा कर देगी और उसे दूसरे दिलों से ज़्यादा गहरी हमदर्दी से भर देगी। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley, and still wondered why its human likeness was so long in coming. उन्हें नहीं पता था कि इससे किताबों से सीखी जा सकने वाली समझ से बेहतर ज्ञान मिलेगा। ना ही अर्नेस्ट को पता था कि खेतों में और आग के पास जो विचार उसके मन में इतने स्वाभाविक रूप से आते थे, वे उन विचारों से कहीं ऊंचे थे जो बाकी लोग उसके साथ शेयर करते थे। वह एक सीधा साधा इंसान था। जैसे जब उसकी माँ ने उसे पहली बार पुरानी कहानी सुनाई थी, तो उसने घाटी में नीचे देखते हुए उस शानदार चेहरे को देखा था, और अब भी सोचता था कि उसकी इंसानी शक्ल आने में इतनी देर क्यों लगी। By this time poor Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. इस समय तक बेचारे मिस्टर गैदरगोल्ड मर चुके थे और उन्हें दफना दिया गया था। उनकी दौलत, जो उनके होने का शरीर और आत्मा थी, उनकी मौत से पहले ही गायब हो गई थी। उनके सोने के पिघलने के बाद से यह आम तौर पर माना जाता था कि बर्बाद हुए व्यापारी और पहाड़ पर राजसी चेहरे के बीच कोई बड़ी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder, old and tired now. He had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown up children prepared to welcome the rehomed commander. हुआ यूं कि घाटी का एक और बेटा कई साल पहले सैनिक बन गया था। बहुत कड़ी लड़ाई के बाद वह अब एक मशहूर कमांडर था। लड़ाई के मैदान में उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। अब बूढ़ा और थका हुआ, उसने हाल ही में अपनी घाटी लौटने की इच्छा जाहिर की थी। वहाँ के लोग, उसके पुराने पड़ोसी और उनके बड़े हो चुके बच्चे मशहूर कमांडर का स्वागत करने के लिए तैयार थे।
It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time gazing at it, for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. कहा जा रहा था कि आखिरकार ग्रेट स्टोन फेस जैसा चेहरा सच में दिख गया था, इसलिए पूरी घाटी में बहुत उत्साह था और कई लोग जिन्होंने कभी ग्रेट स्टोन फेस को देखने के बारे में नहीं सोचा था अब उसे देखने में ज़्यादा समय बिता रहे थे, यह जानने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर असल में कैसा दिखता था। On the day of the general's arrival, Ernest and all of the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. जनरल के आने वाले दिन अर्नेस्ट और घाटी के बाकी सभी लोग अपना काम छोड़कर उस जगह पर गए जहां एक बड़ी दावत तैयार की गई थी। सैनिक पहरे पर खड़े थे, झंडे लहरा रहे थे और भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी। अर्नेस्ट बहुत पीछे खड़ा था, इसलिए उसे ब्लड एंड थंडर का चेहरा नहीं दिख रहा था, हालांकि उसे कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। यह बिल्कुल वही चेहरा, एक आदमी खुशी से नाचते हुए चिल्लाया। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। बहुत पसंद है, यह सच है, दूसरे ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और क्यों नहीं, तीसरे ने कहा, वह इस या किसी भी दूसरे ज़माने का सबसे महान आदमी, इसमें कोई शक नहीं। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face, if there was such a likeness as the crowd proclaimed. Ernest could not recognize it. आखिरकार अर्नेस्ट जनरल का चेहरा देख सका और उसी नज़र में बगल में वह ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सका। अगर भीड़ ने जैसा बताया था वैसा कोई मिलता जुलता चेहरा होता तो अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं पाता। फियर नॉट, अर्नेस्ट said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. डरो मत अर्नेस्ट, उसके दिल ने कहा, जैसे ग्रेट स्टोन फेस उससे फुसफुसा रहा हो, डरो मत अर्नेस्ट, वह आएगा। ओके।